When I am starting my training page, मैं खुश नहीं हूँ, if I'll be very straightforward. This is actually one of the reasons why, you know, मैं content creation पे इतना concentrate नहीं कर पा रही थी. Friday the 13th actually मेरे लिए एक मनहूस दिन बन गया था. Hi guys, my name is Riva and welcome to my channel and welcome to a life update video. So आज की वीडियो में I am going to share and answer most of your questions क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा questions आ रहे थे related to a lot of things, so that is just what I'm going to talk about. This video is the combination of a life update as well as answering your questions, so I don't know ये video कितनी लंबी हो सकती है, and I'm sure only those people would watch who are genuinely interested in my life and who genuinely want to know what has happened and what has not happened. So if you are one of them, thank you so much for sticking around and let's get into our video. So first and foremost, the most asked question was how am I doing? So if you guys don't know या आप मुझे Instagram पे follow नहीं करते हो, there was an incident that happened with me in September. So I actually had a panic attack or anxiety attack, whatever you wanna call it. Friday the 13th actually मेरे लिए एक मनहूस दिन बन गया था. So I had a very intense panic attack, like if I remember about it तो मुझे थोड़ा ऐसे अजीब भी लगने लगता है. And I have been taking medications, I have been taking antidepressants and like मैं अगर उस इंसिडेंट के बारे में बात करूँ, so like I'm just sharing a little brief of what happened. So मैं किसी चीज़ को लेके पैनिक कर गई थी या मैं थोड़ी एंक्शियस हो गई थी. So उसकी वजह से my heart actually started beating a lot क्योंकि that is just a general reaction जो होता है if you feel anxious. So my heart rate went up and I don't know like what happened, वो नीचे ही नहीं आ रही थी. So my heart rate went up to 130 beats per minute, which is a lot considering कि मैं कोई exercise नहीं कर रही हूँ. I was just sitting, like my resting heartbeat was 130 beats and actually I could hear the pounding in my head. मुझे actually मैं सुन रहा था कि कैसे like मेरा दिल धड़क रहा है. And truth be told, like मैं 2 दिन तक उसी state में थी and like I was not able to figure out कि मेरे साथ हुआ क्या है. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. मुझे लग रहा था मुझे कुछ हो गया है, मैं शायद कुछ गलत खा लिया मैंने या जिस वजह से मेरे साथ ये हो गया है. बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि इट इज़ एक्चुअली अ पैनिक अटैक जो मेरे साथ हो रहा है. एंड मुझे कुछ बोलना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या बोलूँ. सो जब मुझे लगा कि नहीं यार सिचुएशन इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड, आई रश टू द डॉक्टर. एंड डॉक्टर के पास भी यू वोंट बिलीव लाइक मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे. मुझे लग रहा था कि अभी मुझे बोलेगा हार्ट से रिलेटेड कुछ हो गया है या जो भी है. ऑब्वियसली बिकॉज आई एम एन एंक्शियस पर्सन, सो जो बंदा एंक्शियस होता है वो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेता है. दैट इज़ जस्ट व्हाट आई वाज डूइंग एज वेल. एंड जब मैं वहाँ पहुँची अगेन माई हार्ट रेट वॉज 129 128 ऐसी थी. तो उसके बाद लाइक आई एक्सप्लेन टू द डॉक्टर एंड इवन द डॉक्टर वाज आस्किंग मी कि आपको मैं अभी तो मेडिकेशन दे दूंगा जिससे लाइक अभी तो आपको रिलीफ हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, उसमें आप क्या करोगे. एंड इवन द डॉक्टर स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ लाइक अप टू यू, लाइक किस वजह का या किस चीज़ की वजह से आपको इतना स्ट्रेस हो गया या क्या हो गया एकदम से जो ये सिचुएशन आ गई है. एंड ही वाज आस्किंग मी लाइक इज़ इट करियर, इज़ इट फैमिली, एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट. बट I actually said that it is everything around me, like it is my career, it is my family, it is my friends, it's everything that is making me anxious. And so like the doctor has advised me to actually solve this problem from the root. मुझे medications पे नहीं बैठना. Of course I want to solve this problem from the root and that is just what I have been trying to do. This is actually one of the reasons why मैं content creation पे इतना concentrate नहीं कर पा रही थी, because I was so like fucked up mentally, and because this is a creative process, like making videos is creative, and जब मेरा दिमाग इतना घूमा हुआ है मैं creativity भी कैसे लाऊँ, है ना. So उस वजह से भी कहीं ना कहीं मेरा content creation affect हुआ है. Content creation क्या, like everything has been affected around me. Like I took those medicines for a month, like I'm still taking those medicines.
बिकॉज मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया कि मुझे अभी बंद नहीं करनी है, आई हैव टू टेक इट यू नो फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. एंड वही है, लाइक इवन दो आई फील बेटर, लाइक इवन दो लाइक मैं 3-4 दिन में ही आई वॉज फीलिंग फाइन. बट जब डॉक्टर को मैंने बताया कि मैं नहीं खा रही हूँ, ही गॉट लाइक रियली मैड एंड ही वाज लाइक अभी नहीं छोड़ना था, देयर इज़ अ रीज़न, लाइक मैंने इतने टाइम तक वो आपको प्रिस्क्राइब करा था. सो अब मैं डॉक्टर की बात मान के आई हैव बीन टेकिंग दोज मेडिकेशंस. बट अगेन लाइक यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन दोज सिचुएशंस, यू वांट टू सॉल्व इट इंटरनली या यू नो डीप रूट जाके सॉल्व करना पड़ता है. एंड दैट इज़ जस्ट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट. टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी भी कुछ फिगर आउट नहीं किया है. आई एम स्टिल वेरी मच एंक्शियस, आई एम स्टिल वेरी मच क्लूलेस ऑफ what to do, how to heal, मुझे कुछ नहीं पता. So talking about my mental health, I have, truth be told, I have not been feeling the best. I have actually not been feeling good. मैं खुश नहीं हूँ. If I'll be very straightforward, I am not happy. Even though in the videos I may look like yeah cheerful and all, but that is just what it is. If you'll ask me if I'm happy, I'll say no, I am not. And कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से मेरा जिम भी इफेक्ट हुआ है. I have missed gym so much since September. Like मैं 3-4 हफ्ते स्ट्रेट अप जिम भी नहीं गई हूँ. एंड जिम इज़ एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स दैट कीप मी सेन. तो वो भी है, वो रीज़न भी है जिस वजह से आई वॉज फीलिंग मोर डाउन. सो एक वो रैबिट होल बन जाता है दैट यू कीप ऑन थिंकिंग एंड देन यू गो इनटू दिस स्पाइरल. फिर उस चीज़ से निकलना और मुश्किल हो जाता है. एंड जब आपके साथ ये सब हो रहा हो, उसके साथ साथ ही यू हैव टू लाइक फोकस ऑन योर वर्क, यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन शिट. तो इसीलिए लाइक आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, लाइक इफ़ यू गाइज, आई नो like you guys have been commenting कि you are not posting so much, you have been absent and you know you all look forward to my videos. So I am like really sorry that I am not able to post, but I have been trying. like सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ. मैं हर जगह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं रहूँ एक्टिव जितना मेरे से हो पा रहा है. बट स्टिल लाइक आई जस्ट वांट अपोलोजाइज अगर फिर से मैं यू नो थोड़ा बहुत मिस कर दूँ. एंड जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग वट एवर आई एम पोस्टिंग. मैं एक्चुअली इस टाइम पे अपने कंटेंट को लेके इतनी ज़्यादा जज कर रही हूँ बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड आई एम एक्चुअली नॉट रियली हैप्पी विद द टाइप ऑफ कंटेंट आई हैव बीन क्रिएटिंग. आई नो लाइक इन माई हेड लाइक मुझे इतना कुछ करना है ज़िंदगी में, मुझे इतनी अच्छी चीज़ें करनी है, लाइक मेरे दिमाग में इतने आइडियाज़ आते हैं दैट आई वांट टू डू. बट बिकॉज आई डोंट वांट टू से दिस, बट एक्चुअली मैं ना हर चीज़ मेरे सर पे है. लाइक आई ओनली हैव टू डू एवरीथिंग अराउंड मी. सो उस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ एंड आई गेट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड. बट दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू ऑल जो भी देख रहा है इस टाइम, दैट आई विल be posting more, I will be posting more often, and I will be you know bringing more unique ideas and more twist and more good ideas जो मुझे अच्छे लगते हैं genuinely. So I am just asking for a little bit of patience and you know just a little bit of support from you all. And अगर आप लोग मेरी videos देखते हैं and you have not subscribed, please subscribe as well, because वही है एक चीज़ जो मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट कर रहा है. एंड यू नो वही एक चीज़ है जो मुझे इस डार्क साइड से बाहर ला सकता है. सो आई होप यू गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू डोंट दैट इज़ ओके एज वेल. इट्स नॉट अ सिंपथी यू नो सब्सक्रिप्शन. में सिंपथी के लिए नहीं मांग रही हूँ कि वो मेरे से सिंपथाइज करो, सब्सक्राइब करना. इफ़ यू डोंट लाइक माई कॉन्टेंट दैट इज़ फाइन टू, बट इफ़ यू डू लाइक इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग बट यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, so I'm asking you like please subscribe as well. So that is just pretty much a major life update that has happened. Second चीज़ ये है कि people have been asking me when I am starting my training page. I know भाई इतने मुझे मैसेज आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, like इन मेरा जो ट्रेनिंग पेज है उस पर भी इतने रिक्वेस्ट आ रखी हैं, like people have been inquiring. Again like उसका भी you know जो रीज़न है कि वो चीज़ें डिले क्यों हो रही है वो इसी लाइफ अपडेट की वजह से ही हुई है. बिकॉज आई हैव बीन यू नो ट्राइंग, लाइक सच्ची बताऊँ तो आई हैव बीन ट्राइंग लाइक हर जगह से कि मैं जल्दी जल्दी शुरू कर सकूँ, हर चीज़ जल्दी से जल्दी डिलीवर कर सकूँ, बट आई एम जस्ट नॉट एबल टू. सो यू नो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ पे. सो ट्रेनिंग पेज बहुत जल्दी आएगा, आई एम श्योर.
ही लोग सुन के पागल हो चुके हैं, क्योंकि मैं एक ही लाइन बार बार बोल रही हूँ कि जल्दी आएगा जल्दी आएगा। यू गाइज हैव बीन आफ्टर माई एस सिंस अप्रैल, सिंस जनवरी, कि कब आएगा कब आएगा। सो पहली बात तो ये, लाइक आई वॉज कम्प्लीटिंग माई सर्टिफिकेशंस प्रॉपरली, क्योंकि मैं बिना सर्टिफिकेशंस के नहीं देना चाहती थी ट्रेनिंग। उस वजह से लाइक मेरा जो सर्टिफिकेशन प्रॉपर है वो अगस्त सितंबर में ही ओवर हुआ था, तभी लाइक आई डिसाइडेड टू यू नो स्टार्ट ट्रेनिंग। बट सितंबर में मेरे साथ ये सब हो गया, उस वजह से आई हैड टू टेक अ लिटिल ब्रेक एंड आई हैड टू यू नो टेक अ स्टेप बैक एंड यू नो टेक अ चिल पिल वाला सिचुएशन। सो उस वजह से भी थोड़ा बहुत यू नो इधर उधर हो गया। बट स्टिल लाइक अगर अपडेट दूँ पेज के बारे में, आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ प्लान्स। मैंने बहुत सारे प्लान्स बना भी लिए हैं, मैंने प्राइसिंग भी कर रखी है उन प्लान्स की, बस उनको एग्जीक्यूट करना है, आप तक पहुंचाना है, बस वही काम बचा, बाकी सब हो चुका है। सो ट्रेनिंग पेज भी बहुत जल्दी आएगा। इफ यूल आस्क मी अ डेट, मेरे पास डेट नहीं है, आई एम सॉरी, बट आई एम लाइक गिविंग यू दिस विद 100% ऑफ श्योरिटी कि बहुत जल्दी ट्रेनिंग पेज आएगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट विच आई कैन। मुझे आधे अधूरे काम करने नहीं पसंद है, अगर मुझे करना आता ना तो मैं बहुत पहले ही कर लेती, बट आई वॉन्ट टू डू थिंग्स द वे दे आर सपोज टू बी डन। तो मैं उस हिसाब से लाइक टाइम लेती हूँ, उस हिसाब से चीज़ें करती हूँ, उस हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट करती हूँ। सो आई होप इफ़ you know I'm just requesting you all to just keep a little bit of patience and you know just give me that support as well, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले काम करने की एंड मुझे थोड़ा बहुत रहे कि हाँ यार लाइक देयर आर पीपल हु आर वेटिंग फॉर मी। लास्टली आई वुड लाइक टू से, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं अबाउट दी वीडियो टॉपिक्स, लाइक सम ऑफ यू हैव बीन आस्किंग फॉर व्हाट आई ईट इन अ डे एंड सम ऑफ यू हैव बीन आस्किंग फॉर वर्कआउट रूटीन्स। मतलब ये बहुत रेकरिंग कमेंट्स है जो मेरी हर वीडियो पे आती हैं कि व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर करो, अपना वर्कआउट शेड्यूल शेयर करो, सब कुछ शेयर करो। तो वो सब भी आएगा, बिकॉज व्हाट आई ईट इन अ डे मैंने इसलिए भी नहीं किया बिकॉज मैं एक्चुअली में नहीं कुछ कर रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे में। आई हैव बीन ईटिंग शिट, आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग माई डाइट, तो उस वजह से भी दिक्कत हो रही है मुझे। एंड वर्कआउट भी मैंने आपको बताया कि मेरे बहुत मिस हुए हैं, आई हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट एट ऑल, तो उस वजह से वो भी नहीं आ पा रहा है, वर्कआउट शेड्यूल भी नहीं शेयर हो पा रहा है, व्हाट आई ईट इन अ डे भी नहीं शेयर हो पा रहा है। बट आई हैव बीन यू नो थिंकिंग एंड अभी तो लगा है मैंने मच बेटर स्पेस, तो मैं एक्चुअली मैं अपना प्रॉपर एक यू नो वर्कआउट गाइड शेयर करूँगी ऑन माई चैनल ओनली। एंड व्हाट आई ईट इन अ डे भी हर तरीके के आएंगे, लाइक व्हाट आई ईट इन अ डे ड्यूरिंग माई कटिंग, ड्यूरिंग माई बल्किंग, हर चीज़ आएगी, फुल फ्लेज्ड वीडियो में आएगी, फुल फॉर्मेट में आएगी, मैं शॉर्ट्स भी नहीं डालूंगी, आई विल बी मेकिंग फुल लॉन्ग लेंथ वाली वीडियोज़ एंड फुल डिटेल में। ऑल्सो बिकॉज लाइक आई हैव बीन गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, तो मैंने एक्चुअली अपने आप से एक प्रॉमिस किया है, जैसे 75 हार्ड डे चैलेंज होता है, बट आई विल बी गिविंग माई सेल्फ अ चैलेंज टू यू नो ग्लो अप अगेन। तो मैं एक ग्लो अप 2.0 टाइप ऑफ सीरीज़ भी लाने वाली हूँ ऑन माई चैनल, जिसमें मैं हर चीज़ बताने वाली हूँ, हाउ आई विल गेट आउट ऑफ you know what I'm going through right now mentally, physically, emotionally and everything। तो वो सीरीज़ की एक्चुअली बताऊँ तो तैयारी चल रही है इस टाइम while you're watching this video। Today is 11th of November when I'm shooting this। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कब आएगी, I am hoping कि ये इसी सैटरडे डल जाए। So you know just to give you guys an update that वो चीज़ भी ग्लो अप 2.0 वाली सीरीज़ मेरी आने वाली है, where I'll be glowing up again। I'll be doing a transformation again, like मैं अपने पे ट्रांसफॉर्मेशन फिर से करने वाली हूँ एंड उसकी पूरी जर्नी आएगी ऑन दिस चैनल ओनली, माई यूट्यूब चैनल ओनली। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको वो सीरीज़ भी देखनी है, क्योंकि वो मैं एक्चुअली बहुत यू नो डेडिकेटेड वे में करने वाली हूँ। लाइक आई हैव अरेंज्ड एवरीथिंग दैट हैज़ टू बी डन। मैंने अपना वर्कआउट शेड्यूल भी बना रखा है, मैंने अपनी डाइट भी बना रखी है, मैंने अपना डाइट प्लान भी बना रखा है, सब कुछ बना हुआ है, बस अब उसको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए आई विल प्रॉबेबली स्टार्ट इन दिसंबर द सीरीज़। तो उसके लिए भी बस थोड़े ही दिन रहेंगे, सो फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। गेस दैट इज़ प्रिटी मच इट इन माई लाइफ अपडेट /
आंसरिंग योर क्वेश्चन. अगर और भी आपके कुछ क्वेश्चंस है आप कमेंट अभी भी कर सकते हो. आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. तो अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है वो भी आप रिप्लाई कर सकते हो. एंड इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन द सीरीज दैट आई विल बी स्टार्टिंग, सो यू कैन एक्चुअली फॉलो अलॉन्ग विद मी ऑन माई जर्नी ऑफ ग्लोइंग अप. एंड ये जो ग्लो अप सीरीज होने वाली है बहुत डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज आई विल नॉट बी ग्लोइंग अप फिजिकली बट आई विल बी ग्लोइंग अप मेंटली, बिकॉज दैट इज़ मोर नीडेड राइट नाउ दैन द फिजिकल थिंग. सो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो. एंड अगेन थैंक यू फॉर ऑल दी पेशेंस, ऑल दी लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइज हैव बीन गिविंग. एंड आई अपोलोजाइज अगेन फॉर दी डिलेज दैट हैव हैपेंड. एंड आई विल मेक श्योर कि आगे से ये ना हो, और अगर होता भी है तो आपको पता चल जाएगा. सो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, वहीं पे मैंने अपडेट डाला था अबाउट द thing that happened with me. So I'll see you guys in the next video. Till then, bye, take care, and be happy, smile, and don't be stressed.